सभी दर्शकों का यहाँ उत्साह, ये देखिए हाथ ऊपर करके उत्साह बढ़ाते हुए। T-3 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान S200 बूस्टर्स और L110 सभी चरणों के फायरिंग लाइन को तैयार कर दिया गया है। अंतिम संचार जांच जारी है। We are 2.5 minutes away from the scheduled launch time. When a huge rocket like LVM-3 ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through nozzles so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. 2 minutes. यह प्रमोशन मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए इसमें निरंतर नजर बनाए रखने के लिए भारत स्थित शार और पोर्ट ब्लेयर में स्थित रडार स्टेशन इसमें पूर्ण निगरानी बना के रखेंगे। और इससे आगे निकलते हुए इंडोनेशिया स्थित बोगोर और ऑस्ट्रेलिया स्थित यत्रगा ग्राउंड स्टेशन की मदद से ट्रैकिंग की जाएगी। The downrange tracking stations of Port Blair, Bogor and Yataraga will be participating for tracking the rocket apart from the Shar tracking station closer to the liftoff. अब हम उड़ान से All 1 मिनट की stations दूरी पर हैं। Stand by for the timer. T-1 minute. दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, -55 seconds. T-8 सेकेंड्स पर क्रायो स्टेज यान से अलग -50 होंगे seconds. और T0 पर S200 बूस्टर्स प्रथम चरण का 45 प्रज्वलन शुरू होगा। HPP open. We are 40 seconds -40 seconds. away from T0. Demolition and open. The viewers may watch -35 out for seconds. the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts -30 its seconds. operation. Real-time programs activated. VSPP open. -25 seconds. -20 seconds. Ignition arms on. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors Plus 5 ignited. seconds. T1 tracking. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Liftoff normal. The T1 rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से और अपनी First उद्दिष्ट stage कक्षा की ओर बढ़ performance चला है। LVM-3 Plus M6 30 रॉकेट seconds. दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of Sharp twin engine main S200 motors. Plus 1 minute. Sharp is in main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. First Burn stage duration performance for normal. present mission is 132.5 seconds.
यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are L110 111 engine seconds started. into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है, Plus 2 जो कि minutes. L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स और L110 engine L110 performance normal. चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The Project- L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed यान loop से- guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Cryo stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया Plus गया 5 है। minutes. Shah and Port Blair ground stations L110 continue to shut off. acquire data. L110 stays separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलो न्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है।
इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे 7 minutes. लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C25 is powered by CE20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. तो ब्लू बर्ड 2 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है, जो आप पूरा प्रोसेस अभी तक यहाँ देख पा रहे थे। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वैज्ञानिक हैं। सर, आपसे सीधे हम समझना चाहेंगे ब्लू बर्ड 2 क्या है, क्या खासियत है और किस तरीके से ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। सर, ये 6 टन से अधिक वजन का यह सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट इतना महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो हम मोबाइल से बातचीत करते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं और डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब जो है उसके लिए मोबाइल के टावर हुआ करते थे। उनकी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना पड़ता था और इसके कारण जो है दुनिया के कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, ग्रामीण इलाके, जहाँ इस तरह की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुँच पाती है इतनी आसानी से। तो अब इस ब्लू बर्ड सैटेलाइट के द्वारा, ब्लॉक 2 के द्वारा अब हमको केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मोबाइल टावर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका मोबाइल सीधे जो है इस सैटेलाइट से जुड़ा रहेगा और दुनिया के किसी कोने में भी आप इससे आसानी से बात कर सकेंगे बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, ग्राउंड के। हम अपने मोबाइल का सीधा संपर्क इस सैटेलाइट से करके और दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी वीडियो चैटिंग कर सकते हैं और किसी भी स्थान से, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे समुद्र का दूरगामी स्थान हो या पहाड़ की चोटी हो, कहीं से जी हम इसका उपयोग कर सकेंगे और वीडियो चैटिंग के अलावा डेटा ट्रांसफर भी बहुत ईजी हो जाएगा। और इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये सबसे सस्ता सैटेलाइट का लिंक रहेगा, न केवल सस्ता रहेगा बल्कि सुविधाजनक रहेगा। इससे हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक की वर्किंग है, ये सब बहुत फास्ट हो जाएंगी। और अभी जो मोबाइल अक्सर हैंग जो हो जाते थे, जो उसमें आपके कनेक्टिविटी पुअर हो जाया करती थी, वो नहीं होगी। ये एक ऐसी डिवाइस है, इसकी आधुनिकतम 5G का जनरेशन का जो इसमें इंटरनेट की सुविधा है, वो सबको आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में मिल सकेगी, चाहे वो अरब सागर का दूरगामी क्षेत्र हो या बंगाल की खाड़ी का मध्य का कोई क्षेत्र हो। कहीं से भी हम जो हैं, अगर जैसे मेरीन जहाज पर अक्सर लोग जाते हैं और उनको किसी तरह की आपातकालीन स्थिति फेस करना पड़ती है तो उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसे में ये एक बहुत आसानी से तुरंत आपात स्थिति में मदद के लिए आगाह कर सकते हैं। पहाड़ों पर अगर हमारे पर्वतारोही कहीं फंसे हुए हैं तो वो सीधे सैटेलाइट के द्वारा अपनी खबर पहुंचा सकते हैं, उनको रेस्क्यू पहुंच सकता है। भूकंप की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में, जहां कहीं इंटरनेट की सुविधा नहीं थी या इंटरनेट का कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी, डिजास्टरस जो संवाद होता था वो नहीं हो पाता था, अब बड़ी आसानी से हो जाएगा। इससे एक ये मानकर चलिए त्वरित कदम में हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और इससे निश्चित ही ये भारत की उस प्रामाणिकता को स्थापित कर रहा है कि देखिए हमने स्पेस में कितनी प्रगति कर ली है। अभी चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और अभी और भी हमने बहुत सारे इकट्ठे सैटेलाइट जो छोड़े हैं। इससे हमारी एक्यूरेसी, हमारी प्रोफेशनल स्किल कितनी सटीक हो गई है, ये प्रमाणित करती है। रहा सवाल इस जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट के लॉन्चिंग में
हमारी जो ये लॉन्च व्हीकल ने काम किया है, कमर्शियली किया है, इससे राजस्व हमारा इसरो कमा रहा है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा बड़ा कदम है कि दुनिया के दूसरे देश भी इस तरह के सैटेलाइट अगर चाहेंगे छोड़ने के लिए तो हमारे राजस्व इसरो का बढ़ेगा। और यही एक कारण है कि कमर्शियल क्षेत्र में अब हमारी स्थापित प्रामाणिकता सिद्ध होने जा रही है। और इस लॉन्च के बाद तो निश्चित ही बहुत ही हमारा जो एक स्टैंडर्ड है, हमारी प्रामाणिकता है, वो पूरी दुनिया को सिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि एक बड़ा कीर्तिमान है और हमारी प्रामाणिकता पूरी दुनिया यहां पर देखेगी। सैटेलाइट के क्षेत्र में, खासतौर पर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। सर, 3 चरणों वाला ये रॉकेट यहां बताया गया, पूरा प्रोसेस भी 3 चरणों में ये हुआ। इस प्रोसेस के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्लू बर्ड की लॉन्चिंग हुई है। देखिए, ब्लू बर्ड तो सैटेलाइट है जो सबसे आगे रखा हुआ है जी। और इसका पहली स्टेज में इसके बूस्टर से उनको जो है सॉलिड फ्यूल से भी इग्नाइट किया गया था और उनको इग्नाइट करने के बाद उसमें 6000 न्यूटन का हमको वहां पर थ्रस्ट मिल रहा था, क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको बहुत जोर का धक्का उसमें लगाना पड़ता है। और ये पहले चरण ने पार किया और वो सीधा अंतरिक्ष के बाहर जाकर, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाकर उसने अपना कार्य पूरा किया। वो बूस्टर अलग हुए और सेकंड स्टेज जो लिक्विड फ्यूल था उसको चालू किया। वो अपने स्थापित ऑर्बिट के पास जाकर उसने अपने तीसरे चरण को इग्नाइट किया और तीसरे चरण में जो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्रायोजेनिक इंजन है जो सबसे जटिल माना जाता है, जिसमें हमने बहुत काबिलियत हासिल कर ली है। ये भारत की अपनी स्विकसित तकनीक है और निश्चित रूप से ये दुनिया की किसी भी, चाहे नासा हो, चाहे अमेरिका का या रूस का हो या चीन का हो, उन सबसे ज्यादा स्थापित और परफेक्ट प्रिसीशन के साथ इसने वह तीसरा अपना चरण पूरा किया और उसके पर्दे खोले और सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो निश्चित रूप से ये 600 सेकंड के लिए ये जो सैटेलाइट अब लॉन्च हो रहा है इस समय उसकी प्रक्रिया चालू है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत सफल प्रदर्शन है। 600 मील ऊपर जमीन के ये अपना काम पूरा करेगा। बिल्कुल राम सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां आपने ब्रीफ में दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसरो ने इतिहास रच दिया है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है।